गुरुतम. Okay, guys, can you hear me? So, welcome to our session here. And today we are going to start further topics of electricity. So, Amishi, can you hear me properly? Amishi, can you? Okay, fine. Aditya Raj, can you hear me? Yes, sir. Okay, good. And Nitish, can you hear me? Yes, sir. Okay, good. Okay, fine. So let's see here. So in our last session, we have covered a few things about the electricity topic, right? Okay. So Amishi, can you hear me now? Yes, sir. Okay. So हमने लास्ट सेशन में ओम्स लॉ पढ़ा था, मैंने कुछ फॉर्मूलाज भी लिखाए थे. So can you tell me what is the Ohm's law? So, Ohm's law. What is Ohm's law? Please tell me. कोई और बताएगा क्या? नीतीश? Current. Ohm's Yes, sir. law? Ohm's law? नीतीश एक मिनट. हाँ बोलिए नीतीश. Ohm's law is directly proportional to current. Ohm's law is directly proportional current? नहीं, ऐसा नहीं बोला था मैंने. Potential difference का directly proportional होता है सर. अच्छा ठीक है, ठीक है. ओके फाइन. ओके अमीशी, अब Yes, आप sir. बताइए व्हाट इज ओम्स लॉ? नोट किया था ना उस दिन? So a current flowing through a यस, हाँ, करंट फ्लोइंग थ्रू conductor. is directly proportional to potential difference, right? So already I have told you that according to Ohm's law, the current is directly proportional to the potential difference, right? और यहीं से हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिया था V is equals to IR. Do you remember guys? या कुछ लोगों के लिए V is equals to RI भी बोल सकते हैं. Okay. So do you remember this or not? Tell me. Yes, sir. Okay, fine. ठीक है. अच्छा, उसके बाद मैंने कुछ चीजें पढ़ाई थी about the resistor, right? मैंने रेसिस्टेंस के बारे में कुछ चीजें बताई थी आप लोगों को, और मैं वापस से, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा हम फास्ट मूव किए थे, सो मैं वापस से चीजों को डिस्कस आप लोग के साथ करने जा रहा हूँ. ठीक है. सो वी विल सी सम प्रॉब्लम्स आल्सो, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा फास्ट क्लास हो गया था. सो आई विल टेक इट टुडे अगेन. ओके, सो वी हैव लर्नड अबाउट द ओम्स लॉ, राइट? एंड ओम्स लॉ कहता ये है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the voltage difference, or you can say potential difference, right? Okay, now we have one graph also. What we have one graph also. I will upload the graph of that, so just give me a second guys. I'm just showing you because graph is important. Sometimes they ask questions from the graph. Okay, uploading. Okay guys, so here is the graph. Okay, all of you can see the graph. So in the graph it says a very simple thing, that if current is increasing, and this represents the x-axis representing what? Our potential difference, right?
So with the help of this is directly proportional. That's why we are getting what? We are getting a straight line like this. What we are getting? We are getting the straight line like this. So it represents that that means you can say this line representing about the resistance. Why? Because if I go for V upon I, so it will give me what? It will give me a constant, and the constant we have considered as a resistance as a constant. That's why the graph according to the Ohm's law, we will get this kind of graph. Amish, is that clear? Ohm's law में ग्राफ कैसा आएगा? तो इस तरह का ग्राफ आता है, याद रखिएगा always. Straight line रहता है, right? Is that clear? Yes, sir. Okay, ठीक है. हम कुछ क्वेश्चंस भी और देख लेते हैं उस दिन, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस आप लोग साथ डिस्कस नहीं कर पाया. सो अच्छा नीतीश, आप मुझे बताएंगे क्या कि एम मीटर कहाँ लगाते हैं? हेलो, सीरीज में सर. सीरीज में. ओके फाइन, गुड. ओके ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं आगे. जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क यू. सभी लोग रेडी रहें, बहुत सिंपल वाला है. Please read and solve. Can you see the question, guys? A potential difference of 20 volts is applied across the end of resistor 5 ohm. What is the current? Yes sir. बहुत आसान है, तुरंत बताइए. Quick, fast. 4 sir. So current is 4. Amish, is that clear with you? Yes, sir. आदित्य, सोनल, current 4 आया. Clear है? Okay. Yes, sir. Okay, fine. Okay. Next one I am going to take it. तो चलिए, ये आसान वाला तो आप लोग बहुत जल्दी से कर लिए हैं. Fine. Give me a second. Uploading the problem. Giving you guys. Okay, please read and solve. ये भी आसान है, बहुत टफ नहीं है. All of you guys, please read and solve it. Amishi, please read the question loud. A potential difference of 10 volt is needed to make a current of 0.02 A flow through a wire. What potential difference is needed to make a current of 250 mA flow through the same wire? Okay, fine. And who has joined with the new one 17J? सोनल, पता है किसने ज्वाइन किया है? No, sir. Okay, no problem. Please solve the question. आशीष होगा सर. कौन होगा? आशीष सर. Okay, fine, no issue. Okay, ठीक है, उनको बता दीजिए ऑडियो ज्वाइन कर लेंगे. ठीक. Okay. In this question, guys, you can see that a potential difference of 10 volt is needed to make a current of this much flow through a wire, right? ये statement दे दिया इन्होंने. Okay? Okay. Give me a second. I will mute somebody. Please mute yourself, guys, all of you. Okay. So यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया है कि 10 वोल्ट इज नीडेड टू मेक अ करंट 0.002 एम्पियर. तो इससे क्या मालूम चला कि कुछ रेसिस्टेंस होगा वायर में. देयर विल बी सम रेसिस्टेंस. सेम वायर से अगर कोई दूसरा भी करंट क्रॉस करता है
तो क्या रेसिस्टेंस उसका चेंज हो जाएगा? नो, रेसिस्टेंस विल बी सेम. रेसिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग बिकॉज रेसिस्टेंस इज अ कांस्टेंट. अगर किसी मटेरियल का कोई रेसिस्टेंस है तो वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, राइट? सो फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट we will calculate what is the resistance. So we know very well voltage is 10 volt is given to us and the current is given me as 0.02 ampere. So we know very well V is equals to IR. So from, 120. yes, so from here we can calculate the R is equals to V upon I, and that's we can say here 10 upon 0.02, which will be how much? 100. 10 into 100 upon 2. So it goes to be 500 ohms, right? Yes, sir. So ये तो resistance निकल गया, but पूछ Yes, क्या sir. रहा है? What voltage is needed to make current 250? मतलब कितना वोल्ट होना चाहिए? 250 मिली एम्पियर. मिली एम्पियर का मतलब अभी करंट जो था वो कितना था हमारे पास? 250 मिली एम्पियर. इसका मतलब हो गया कि this is 250 upon 1000 amperes, 1000. right? Yes, We sir. can say 1 upon 4. So current की वैल्यू हो गई 1 upon 4 एम्पियर. वो रेसिस्टेंस हमको मालूम है 500 ohms. तो कितना वोल्टेज पास कर जाएगा? So we know very well. 125. Yeah, right. So 500 times 1 upon 4, that gives me 125 volt. So this much volt. अब इसमें क्या चीज कांस्टेंट था? Resistance is same for both the cases. If you see here guys, resistance is same for both the cases. Because why resistance? Amishi, can you hear me? Yes, sir. Resistance क्यों सेम हो गया दोनों केस में? Tell me. So वायर तो वायर था ना, सामान थोड़ी ना बदला हमने. और रेसिस्टेंस तो सामान का होगा, वायर का होगा, राइट? तो अगर हम सेम वायर यूज कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस भी तो सेम ही रहेगा. Yes, sir. Constant वही था. रेसिस्टेंस इज व्हाट? रेसिस्टेंस इज अ कांस्टेंट, राइट? क्वेश्चन में क्या बोला है? थ्रू अ वायर. तो पहले हमने उस वायर का रेसिस्टेंस निकाल लिया. अब वही वायर दोबारा से इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम दूसरा करंट फ्लो कराने के लिए. करंट तो अप एंड डाउन हो सकता है क्या वायर, लेकिन हम बदल आप. अच्छा एक बात बताइए अमीशी, आपके घर में कभी बल्ब जल्दी जो ज्यादा लाइट के साथ जलता है, कभी कभी देखा होगा बहुत डिम लाइट भी आता है, देखा कभी डिम? yes, sir. तो क्या वायर बदल जाता है क्या डिम लाइट आता है तो? No, sir. वायर तो वही रहता है ना, वायर वही रहता है, तो रेसिस्टेंस वही रहेगा. बस क्या फर्क पड़ेगा? वोल्टेज एंड करंट का. तो जब 10 एम्पियर 10 वोल्टेज था तो उससे 0.2 एम्पियर फ्लो 0.02 एम्पियर फ्लो कर रहा था. तो हमने रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया कि कितना रेसिस्टेंस का वायर था उसमें लगा हुआ. अब उसी रेसिस्टेंस के वायर से अगर 1/4 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो कितना वोल्टेज आएगा, तो ये हमने निकाल लिया. डू यू अंडरस्टैंड अमिशी और नॉट? Sir. ऑल ऑफ यू गाइज, किसी को कोई डाउट है तो मुझसे अभी पूछे इस पर. No, sir. आदित्य, क्लियर. आपको कोई डाउट है इस पे? नो सर, क्लियर है. ओके. इनका क्या नाम है, क्या बताया? आशीष. आशीष, कैन यू हियर मी? यस सर. कोई डाउट इस क्वेश्चन में? कोई डाउट है आपको? नहीं नहीं सर. ओके, हम बता दें आपको कि हम लोग ओम्स लॉ पे कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे. ओम्स लॉ जो है कहता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. सो वहां से फॉर्मूला आया है V इज इक्वल्स टू IR. आपने शायद पहले अटेंड नहीं किया होगा तो आप हमारे वीडियोस को जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको सब क्लियर हो जाएगा. यस. ओके ठीक है, हम Yes. आगे बढ़ते हैं. कुछ डाउट होगा तो अनम्यूट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं. फाइन. यस. ओके. सोनल क्लियर है? Yes, sir. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. गाइस तो ये था प्रॉब्लम. अब इसमें प्रॉब्लम्स और इंक्रीज होंगे, लेवल और इंक्रीज होंगे. और सोनल म्यूट कर लीजिए. ओके, नीतीश भी म्यूट कर लीजिए. ओके, तो अब प्रॉब्लम्स क्या होगा? इंक्रीज होगा. और मैंने इसके बाद पढ़ाया था आप लोगों को
एक फॉर्मूला, जस्ट गिव मी सेकंड। आप लोग को ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं थियोरेटिकल पार्ट, सो मैं अब एप्लीकेशन पार्ट पे ध्यान दूंगा। सो मैंने आप लोग को पढ़ाया है रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। सो अमीशी, कैन यू टेल मी व्हाट इज रो हियर, व्हाट रो रिप्रेजेंट्स? अमीशी, रो को क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। एंड रेसिस्टिविटी डिपेंड अपॉन व्हाट? It depend upon the material, right? And it is a fixed quantity. It is what? It is a fixed quantity. You can say constant. अच्छा, दूसरा L क्या है? L means length of wire. Length of wire. And what is A? A means cross sectional area. Cross sectional एरिया। इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? इट शुड बी ऑलवेज एरिया ऑफ सर्कल। याद रख लीजिए, एरिया ऑफ सर्कल। क्यों एरिया ऑफ सर्कल? क्योंकि अगर आप वायर देखोगे, ये वायर है अगर, राइट, तो क्रॉस सेक्शन कहाँ आएगा? क्रॉस सेक्शन कुछ यहाँ पे आएगा। और ये क्या है क्रॉस सेक्शन? इसका क्रॉस सेक्शन हमको सर्कुलर नजर आएगा, राइट? So that's why cross sectional area हम always area of circle लेते हैं। That we consider pi d square upon 4। जिनको नहीं याद है और जो नए हैं उनको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इस पॉइंट को। And R is what? R is called the resistance. Noted, guys, all of you? Yes. ओके, सो अब हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं इसके बेसिस पे। जरा आप सब लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली जो रेसिस्टिविटी की जो वैल्यू होती है वो क्वेश्चन में दे देते हैं, ओके, बट नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं, हम उसको निकाल लेंगे, राइट? सो अभी देखिए एक प्रॉब्लम मैं लेने जा रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। So I have a problem here and I'm going to upload it. Okay. Nitish, can you read the problem, please? A copper wire of length 2 meter and area of cross section इतना and has a resistance of? Has a resistance of 2 into 10 के power inverse 2 ohms. Calculate the resistivity of the copper. इसको पढ़ते हैं 2 into 10 the power minus 2। इनवर्स, ठीक है, इनवर्स भी बोल सकते हैं, बट एक्चुअली बोलते हैं 2 into 10 the power minus 2। 2 into 10 power minus 2 ऐसे बोलेंगे। इज दैट क्लियर गाइस? यस सर। ओके, ठीक है, चलिए मैं इसको रब कर देता हूं, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है गाइस। अब देखिए इसमें सबसे पहले जब सॉल्व करते हैं हम लोग, तो तरीका होता है ये सॉल्व करने का कि गिवन डेटा नोट कर लो। सबसे बेस्ट ऑप्शन कि गिवन डेटा अगर आप नोट कर लेते हो तो रॉन्ग होने का चांस नहीं है। सो गिवन डेटा में देखिए क्या क्या है। लेंथ मिला हुआ है मुझे, सो आई विल राइट इट डाउन हियर। लेंथ इज इक्वल्स टू 2 meters। क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो लेंथ मतलब L मिल गया मुझे। एरिया कितना हो गया जी? एरिया हो गया 1.7 into 10 the power minus 6 मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यूनिट्स पर, बहुत टाइम सेंटीमीटर दे देता है, मिलीमीटर दे देता है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। एंड व्हाट इज द रेसिस्टेंस वैल्यू? रेसिस्टेंस वैल्यू इज R is 2 into 10 the power minus 2 ohms। ठीक है, अब देखिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, क्या पूछ रहा है? रेसिस्टिविटी पूछ रहा है, मीन्स रो की वैल्यू क्या होगी वो निकालना है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो मैं लिख सकता हूं R टाइम्स A अपॉन L, दैट इज इक्वल्स टू रो। कैन आई से दैट? यस सर। अमीशी, इज दैट क्लियर विद यू? Yes, sir. Okay. Nitish and Aditya,
आशीष, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके फाइन गाइस। सो अब देखिए, अब यहां से हमको फॉर्मूला मिल गया है, तो मैं लिखूंगा रेसिस्टिविटी इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। तो अब जस्ट हम फॉर्मूला, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो वैल्यू इज 2 into 10 the power minus 2, एरिया का वैल्यू हो गया 1.7 टाइम्स 10 पावर माइनस 6, और यहाँ पर ये हो गया 2। तो अब देखिए हम कैंसलेशन कर लेते हैं, ठीक है? तो कैंसलेशन में ये इससे कैंसल हो जाएगा, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको एज इट इज हम लिख देंगे 1.7, और ऊपर में कितना हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे? यस सर, 10 के माइनस 8 सर। यस, 10 द पावर माइनस 8। यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट क्या हो रोम जाएगा? सर, नहीं, इसका यूनिट ओम नहीं होता, यही तो यहाँ पे रोल पॉइंट। सर, हाँ, रोल कौची तो नहीं 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 नहीं। अब देखिए मैं यूनिट लिखना सिखाता हूँ। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है गाइस? ओम सर, ओम। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर सर, और लेंथ यूनिट क्या होता है? मीटर सर। तो अब देखिए, ये यहाँ पे ये मीटर था, और इसके लिए ये मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर ये ओम। तो ये 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच Yes, sir. जाएगा? ओम मीटर। Ohm meter. So please make a note of that the unit of resistivity is Ohm meter. yes, unit of। तो देखिए हमें याद नहीं करना पड़ेगा, हमें इजीली हम निकाल सकते हैं यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, सॉरी रेसिस्टेंस नहीं, रेसिस्टिविटी। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम सीधा निकाल। resistivity, yes, and that is ohm meter. Amishi, is that clear with you? Yes, sir. हमने कैसे कैलकुलेशन किया, ये सारा क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. ओके, प्लीज गाइस नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जा रहे हैं, Yes, sir. बिकॉज प्रॉब्लम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्स में थ्योरी कम, प्रॉब्लम ज्यादा आएगा। So giving you 30 seconds to note it down fast. हो गया sir. Okay, please mute कर लीजिए। अमिशी डन? Yes, sir. आशीष डन? आशीष डन? Yes, sir. Okay, नीतीश? नीतीश डन? नीतीश, आदित्य डन? यस सर। ओके, ठीक है, म्यूट कर लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। ओके गाइस, गिव मी सेकंड। तो ये डन हो गया, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में बढ़ते हैं। ओके, यस, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज टेकिंग, और सोनल आप अपना थोड़ा सा नेट का देखिए, आपका नेट का थोड़ा इशू आ रहा है इधर आजकल। ओके, yes, okay, fine. Amishi, can you read the problem please? Yes, sir. A copper wire has a diameter of 0.5 mm and a resistivity of 1.6 into 10 raised to the power Minus Min- 8. 8 ohm m Ohm Yeah. meter. Resistivity is ohm meters. ohm meter. Right. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? Right. B. How much does the resistance change if the diameter is doubled? Okay. तो क्वेश्चन दो चीज पूछ रहा है इसमें। पहला पूछा कि लेंथ कितना होना चाहिए अगर रेसिस्टेंस 10 ओम होता है, और दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछ रहा है कि अगर डाया हम डबल कर दें, यहाँ पे डाया कितना है 0.5 mm है, राइट? अगर डाया डबल कर दें तो रेसिस्टेंस में क्या चेंज आएगा वो हमें देखना है। सो वी विल डू वन बाय वन। सो आई एम गोइंग फॉर द पार्ट ए, राइट? So for the part A, please we will note it down the given data. So guys, given data में क्या मिला हुआ है हमें डाया ऑफ वायर क्या मिल गया है? डाया ऑफ वायर that is 0.5 mm. Be careful, they have given mm. So हमको mm को कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? मीटर्स में। तो कोई मुझे बताएगा कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू
how many millimeters? Hello, Amishi? Yes, sir. 1 meter is equals to how many millimeter? 1000 millimeter, right? तो अगर मैं यहां से देखूं तो 1/1000 meter is equals to 1 millimeter. Can I say that? Yes, sir. So अमिशी क्लियर है आपको ये वाला या नहीं? Clear है. ओके तो अब पहले इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो मैं 0.5 इंटू 1/1000 मीटर. तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर. ये क्या मिला मुझे? दिस इज द डाया, राइट? सो वी विल कैलकुलेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. व्हाट वी विल कैलकुलेट? Okay, just give me a second. I think some issue is coming. Okay. Give me a moment, guys. Okay, fine. So area of cross section we need to calculate. So we know very well. क्या formula क्या है? Pi by 4 into d square, right? Yes, sir. Okay. So pi by 4 कितना हो जाएगा, guys? किसी को मालूम है pi by 4 कितना हो जाता है? नीतीश? पाई का मान होता है वैल्यू सर. हाँ पाई का वैल्यू होता है. कितना होता है? 22/7 सर. अच्छा पाई बाय 4 कितना हो जाएगा फिर? गाइस कोई जिसको नहीं पता है नोट कर लीजिए, मैं यहाँ शॉर्टकट बता रहा हूँ. पाई बाय 4 का वैल्यू हो जाता है 0.785. इसको याद रखिएगा. जिसको कैलकुलेट करके चेक करना है जरा चेक कर लीजिए. अमीशी पाई का वैल्यू क्या होता है? Sir, 22/7 divided by 7. ठीक है तो अगर हम पाई बाय 4 कर दें तो गाइस कितना आएगा? चेक कीजिए जरा. ठीक है सर. 0.785. जिसको नहीं पता है प्लीज नोट डाउन कर लीजिए एग्जाम्स में फास्ट कैलकुलेशन, क्योंकि इसके डिवीजन में क्यों पढ़े हम? ये तो Yes, फिक्स रहता है ना ऑलवेज. तो हम थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं यहाँ पे. तो पाई बाय 4 जो यस टेल मी, कोई बोल रहा था अभी? कितना बताएं सर? पाई बाय 4 बराबर यहाँ ऊपर लिखा है 0.785. यस. याद रखिएगा ऑलवेज गाइस, पाई बाय 4 की वैल्यू जो होती है 0.785 होता है. अगर Yes. नहीं किसी को पता तो मैं करके दिखा देता हूँ. पाई बाय 4 जो है मैं कर देता हूँ. पाई बाय 4 इसका मतलब हो गया कि पाई का वैल्यू हो गया 22/7 और 4 मतलब अगर हम देखें तो ये 22/28 हो जाएगा. Yes, sir. अच्छा 22/8 को अगर आप 22/28 अगर आप करोगे तो 0.785 आंसर आता है. आप ये चेक कर लेना. तो अब ये करने की क्यों जरूरत है? जब मुझे मालूम है तो मैं डायरेक्टली लिख भी तो सकता हूँ. Yes, sir. तो ऑलवेज याद रखिएगा ये सारा शॉर्ट ट्रिक्स है कि फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें. सो आई विल राइट डाउन हियर 0.785. डी जो है वो 0.5 इंटू 10⁻³ तो इसका हमको स्क्वायर कर लेना है, राइट? सो ये कितना आ जाएगा? 0.785 टाइम्स इसका स्क्वायर पहले कर दे तो कितना हो जाएगा? ये 0.25 सर. 0.25, राइट? Yes, sir. एंड 10⁻³ का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? Yes, sir. -6, राइट? -6. अच्छा अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. यस सर. तो 0.785 times 0.25 will give me something 0.196 into 10⁻⁻6. Okay? Yes, sir. So this is coming meter square. देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम यही सब होता है, कैलकुलेशन करने में टाइम थोड़ा जाता है. अमीशी, इज दैट क्लियर? Yes, sir. अच्छा हम नेक्स्ट पेज मूव करें क्या गाइस? नोट कर लिया यहाँ तक? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले निकाल लेंगे हम, राइट? Yes, sir. अच्छा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिल गया है. रेसिस्टिविटी ऑलरेडी दे दी है इन लोगों ने. सो आई विल जस्ट गो हियर, गिव मी अ सेकंड. आई विल रब फास्ट. गिव मी अ सेकंड गाइस.
ओके सो ऑलरेडी हमको रेसिस्टिविटी 1.6 में नोट कर लेता हूँ. सो रेसिस्टिविटी इज 1.6 कितना है नेक्स्ट इंटू 10 द पावर -8 इंटू 10 द पावर -8 ओम्स मीटर. अच्छा क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो पूछ ये रहा है मेक द रेसिस्टेंस 10. सो अभी हम यहाँ पे रेसिस्टेंस 10 ले लेते हैं. ओके रेसिस्टेंस वैल्यू हो गया 10 ओम्स. पूछा कि लेंथ क्या होगा, तो हमें फॉर्मूला मालूम है. मैं यहाँ लिख देता हूँ वी नो वेरी वेल R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A. तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ R टाइम्स A अपॉन रो, दैट विल बी इक्वल्स टू L गाइस, राइट. सो L इज इक्वल्स टू R की वैल्यू है 10. एरिया हमको कितना मिल गया था जी 0.196 इंटू 10 द पावर -6, राइट. सो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 0.196 इंटू 10 द पावर -6 और रो की वैल्यू पे जो है वो 1.6 इंटू 10 द पावर -8, राइट गाइस. तो जरा Yes. इसको सॉल्व कर लीजिए मेरे साथ. तो अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहली चीज जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कुछ बन जाएगा 1.96 नीचे 1.6, इसको इधर लिख देंगे और 10 द पावर -6 और 10 द पावर -8. तो अगर आप इस पार्ट को रिजॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा ये. मैं रिजोल्यूशन का तरीका बता रहा हूं. मैं 1.96 को एज इट इज अभी छोड़ रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा. अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो हम लिख सकते हैं 10 द पावर -6 -8. तो ये कितना बन जाएगा 10 द पावर -6 प्लस 8. सो इट विल गिव मी 10 द पावर 2. Yes, sir. तो 10 द पावर 2 मतलब मैं 100 डायरेक्टली लिख लूं. Yes, sir. तो ये कितना हो जाएगा 196 अपॉन 1.6. 1.6 और 1.6 से अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे, कोई दिक्कत. into 10. Yes, sir. अब अगर मैं इसको करना चाहूं तो आई थिंक ये 2 से चला जाना चाहिए. Yes, sir. तो 2 से 196 मतलब 9 दूना 18 8 दूना 8 16 और ये हो जाएगा 8. अगर मैं इसको फिर से देना चाहूं तो 4 से चला जाएगा. चेक इट 4. सो 98 को 4 No, से sir. तो No, sir. नहीं जाएगा, 2 से फिर जाएगा, राइट. Yes. Yes, sir. सो डिवाइड कीजिए, आंसर बताइए कितना आ रहा है. अमीशी डू यू क्लियर? ठीक है सर. Yes, sir. तो सॉल्व कीजिए 98. इसको अगर मैं 2 से कर दूं तो ये कुछ 98 जो है वो 2 से चला जाएगा तो 5 आ रहा है सर. गुड 49/4. सो कितना 122.5, राइट, यस Yes. सर. मीटर्स. इज दैट क्लियर गाइस? यस सबने सर. Yes, नोट sir. कर लिया? Yes, sir. अमीशी नोट कर लिया आपने? Yes, अमीशी sir. ओके. हम नेक्स्ट पार्ट चल रहे हैं करने गाइस. नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन क्या ये रहा है, हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डाया इज डबल. अब फिर से इसने मुझे मेहनत करने की बोल दी. अब कह रहा है कि रेसिस्टेंस में कितना चेंज आएगा जब डायामीटर क्या हो जाएगा, डबल हो Double. जाएगा, राइट. तो अब Yes, चलिए sir. फिर से मेहनत थोड़ा सा करना पड़ेगा. तो पार्ट बी में सिंपल सी बात है, पार्ट बी में डाया ऑफ वायर हम उतनी मेहनत क्यों करें. सिंपल सी बात है, 1 मिनट. हम मेहनत ज्यादा क्यों करें, जस्ट अ सेकेंड. अभी मैं बताता हूं कि इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से. आप लोग को मालूम है कि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है रो L अपॉन A होता है, राइट. Yes, sir. अच्छा, तो आप लोग को मालूम है रो L और एरिया के जगह पे मैं लिख दूं यहाँ पे पाई d स्क्वायर अपॉन 4. किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. अमीशी किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. ओके ठीक है.
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेसिस्टेंस में कितना चेंज होगा जब डाया डबल हो जाए। क्या हो जाए? डाया डबल हो जाए। तो अगर हम ले लें न्यू डाया is twice of the old dia. Can I write like this? This is our old dia, right? So new dia is twice of this. So we can write down here new resistance is रो वही रहेगा, लेंथ वही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ पे एरिया लिखना चाहूँ तो कैन आई राइट डाउन पाई, डाया कितना हो गया 2d, so अब मैं लिख सकता हूँ 2d का स्क्वायर अपॉन 4। कैन आई राइट दैट? Yes. तो अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा दूं तो इसको लिख सकता हूँ 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, राइट। नीचे देखिए, नीचे क्या लिखूंगा मैं? नीचे लिखूंगा 4 रो एल। अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूं तो ये बन जाएगा 4d स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे? अगर मैं इसको देखूं तो मैं लिख सकता हूं, इस वाले 4 को मैं बाहर निकाल लूंगा तो मैं लिख सकता हूं 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। कैन आई राइट दैट? Is this our old value? Check it. Is it coming same? So R new is how much? R new is 1/4 of the R old. इसको R old मान लीजिए। तो कितना हो गया? अगर हम डाया डबल होता है तो रेसिस्टेंस 1/4 हो जाता है। Is it clear, guys? Yes. अमीशी, Yes, sir. समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया sir. प्लीज नोट इट डाउन फास्ट गाइस, ये इंपॉर्टेंट था। देखिए मैंने उतनी मेहनत नहीं की, न्यूमेरिकल्स में नहीं घुसा, डायरेक्टली मैं बाहर से ही सॉल्व कर लिया। तो अगर हमारा न्यू डाया 1/4 हो जाता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी 10 ओम दे रखा था, तो नया डाया क्या हो जाएगा? 10/4 हो जाएगा। दैट विल बी 2.25 सॉरी, राइट गाइस? इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. Okay, note down fast. तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे, आप लोग को सॉल्व करना है। ओके Done, guys? Yes. Okay. Just give me a second. Okay, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि आप लोग अभी सॉल्व करके मुझे बताएंगे। यस, ये क्वेश्चन है, जरा मैं देखना चाहता हूं कौन कौन अपनी बुद्धि दिमाग लगाता है। ओके तो नीतीश, आज क्या खाना खाए थे दोपहर में? सर रोटी खाए थे सर। रोटी, ठीक है। तो जरा इस पे बुद्धि लगाइए, तो कैसे बनेगा? सब लोग जरा दिमाग लगाइए, इसको बहुत आसान है, आसानी से सॉल्व होगा। क्वेश्चन कहता क्या है कि 6 ओम रेसिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग। ठीक है, मैं एक चीज बता दूं यहाँ पे कि अगर एक वायर, ये लंबा सा वायर हमने ले लिया, क्या ले लिया हमने? लंबा सा वायर ले लिया, डबल्ड अप बाय फोल्डिंग, तो इसको हम फोल्ड करेंगे, तो यहां से फोल्ड करेंगे ना? यस सर, तो दोगुना हो जाएगा। तो नहीं, लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ हाफ हो जाएगा, लेकिन एरिया क्या हो जाएगा? डबल। एरिया डबल हो जाएगा। सेम रहेगा। हाँ, सेम सेम कैसे हो जाएगा? एरिया विल बिकम हियर, क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बिकम डबल एंड लेंथ विल बिकम हाफ। गॉट इट? तो जरा आप लोग दिमाग लगाइए कैसे बनेगा, मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैंने बस इतना सा हिंट दे दिया है कि अगर अमीशी, आपको हिंट समझ में आया? अमीशी, Yes, sir. हिंट समझ में आया आपको या हिंट नहीं आया समझ में? फिर समझ आया। हाँ, तो जरा इसको सॉल्व की तो बहुत ये प्रॉब्लम आता ही आता है एग्जाम में।
ठीक है। Sir. हाँ, इसको मैंने हिंट दिया है, जरा बेगा बना के दिखाइए। मुझे चाहिए न्यू रेसिस्टेंस ऑफ वायर। P हो जाए L to R is the ओके, डन गाइस। Yes sir. क्या आंसर आया, कोई मुझे बताएगा? What is the value of the new resistance? ये टॉपिक बहुत आसान नहीं है, मेहनत लगेगी सब लोगों को, तब जाकर ये आसान बनेगा। यस, नीतीश हुआ? नीतीश, हेलो? आदित्य, आदित्य, Amishi, is it done? No, sir, I'm not able to solve it. आशीष, आपसे हुआ? ट्राई कर रहे हैं सर। ओके, कोई बात नहीं, हम बताते हैं कैसे करना है, नो प्रॉब्लम। ओके, so listen me very carefully guys. In this question it says that 6 ohms resistance wire is doubled up by folding. So पहले देखिए, पहले एक वायर था, क्या समझेंगे हम? पहले एक वायर था, राइट? उसका लेंथ L था, क्या था? L, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया हम मान लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या था? A था। और रेसिस्टिविटी चेंज तो होगी नहीं, क्योंकि हम वही मटेरियल यूज करने जा रहे हैं। सो वी कैन राइट डाउन हियर आर ओल्ड, ओल्ड मींस कि पुराना वाला केस, उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे रो L अपॉन A, that is how much? That is 6 ohms. Already it's given in the question. Any problem? This is the old case. In the new case, what will happen? Wire is doubled up by folding. तो मैं कहने का मतलब, जो ये वायर हमने इस यूज किया था L लेंथ का, अब इसको फोल्डिंग करेंगे तो ये कुछ हाफ हो जाएगा, राइट? यस। एंड फोल्डिंग किया तो हाफ, और ये कुछ ऐसा दिखेगा हमें, कुछ ऐसा। दैट मीन्स अगर हम देखेंगे, सो न्यू लेंथ कितना हो जाएगा? न्यू लेंथ विल बिकम द हाफ ऑफ द ओल्ड लेंथ, राइट? हाफ ऑफ द वायर, यस। राइट, एंड न्यू एरिया कितना हो जाएगा?
double of the Double. old one. So double Old of wire. Old wire. old wire. हमने अमीशी ये लिख दिया, कोई दिक्कत इसमें? No, sir. रेसिस्टिविटी बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी, sir. क्योंकि हम सेम वायर नहीं, यूज sir. कर रहे हैं. So whatever the resistivity is here, resistivity is same in this case. So we can write R new rho L new A upon area new. तो हम इसको लिखेंगे रो L new की वैल्यू क्या है? L new की वैल्यू है L upon 2. L/2. So can I write L by 2? और न्यू एरिया की वैल्यू कितनी है जी? तो 2a है. तो हमने लिख लिया 2a. अगर इसको जरा सा रिजॉल्व करेंगे हम, तो ये लिखेगा रो L 2a टाइम्स 2 लिख सकते हैं हम. Yes, sir. अच्छा, अब इसको फर्दर अगर हम लिखें, मैं ब्लैक पेन यूज करता हूं जो क्लियर दिखेगा आप लोगों को. फर्दर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स 2, 4 को मैं बाहर निकाल लूं यहाँ पे. एंड कैन आई राइट डाउन हियर रो L अपॉन a. और रो L अपॉन a क्या है? दिस इज द R old and that is how much? That is 6 ohms value. So can I write Yes. 1 by 4 times 6? And it will give me how much? It will give me 1.5 ohms. Do you clear guys? कैसे करते हैं प्रॉब्लम? Yes, sir. नीतीश, अमीशी, आशीष, आदित्य, क्लियर हुआ कैसे करना है इस प्रॉब्लम को? अमीशी, क्लियर? अमीशी, Yes, sir. ओके, क्लियर है? Yes, sir. ओके, नीतीश क्लियर है? नीतीश Yes, sir. क्लियर है प्रॉब्लम? Yes, sir. आदित्य प्रॉब्लम क्लियर है? Yes, sir. समझ में आया कैसे बनाएंगे? ओके. एंड मैं आशीष का नाम रीनेम कर देता हूं. आशीष क्लियर है प्रॉब्लम? आशीष, आशीष प्रॉब्लम क्लियर है? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. नोट कर लिया सभी ने? Yes, sir. ओके. अमीशी नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक है. तो गाइस इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप लोग को मिलेंगी और आप लोग को इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. ओके गाइस, चलिए. ये एक नया कोई ज्वाइन हुआ है. नीतीश मालूम है कौन ज्वाइन हुआ है रेडमी से? Yes, sir. रजनीश है सर, फ्रेंड. ओके फाइन, नो प्रॉब्लम. ओके, रजनीश आवाज जा रही है? ओके, I will give the name here. Okay, fine. So we will move for the next problem here, and please mute yourself guys. Okay, moving for the next problem. अब हम इसमें एक चीज बताने जा रहे हैं जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताई थी. मैं उसको वापस से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. नाउ आप लोग को याद होगा गाइस, मैंने रेसिस्टेंस इन पैरेलल एंड रेसिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला लिखवाया था, राइट? सिर्फ मैंने फॉर्मूला लिखाकर छोड़ दिया था. आज मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे क्या होता है. ओके गाइस, सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू. फर्स्ट आई विल टेक रेसिस्टेंस इन सीरीज. रेसिस्टेंस इन सीरीज पहले मैं फॉर्मूला प्रूव करूंगा और फिर पैरेलल एंड देन वी विल सी फ्यू क्वेश्चंस. ओके, सीरीज क्या होता है? इफ इन अ सर्किट, if you have applied the resistance like this is what? Resistance. So here we will apply one battery and I have connected directly. क्लोज सर्किट बना दिया मैंने. यहाँ वोल्ट, ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, ये हमारा R3 हो गया. ओके,
अमीशी एंड सभी लोग ध्यान से Yes. सुनेंगे मेरी बातों को कि इसमें क्या होता है. We consider that same current give me a second. We will consider here that same current will flow in all resistance. याद रखिए गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर आपका रेसिस्टेंस सीरीज में है तो आपको कंसीडर क्या करना है कि सेम करंट विल फ्लो इन ऑल रेसिस्टेंस. कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर I फ्लो हो रहा है तो यहाँ भी क्या फ्लो होगा, I. यहाँ भी क्या फ्लो होगा, I. Is that clear guys? Yes, sir. Sir. So याद रखना ये है कि करंट जो होता है सीरीज में, I जनरेट हुआ तो I करंट ही पूरे सर्किट में फ्लो होगा. राइट? ओके. और डिफरेंस क्या रहता है इसमें? पोटेंशियल विल बी डिफरेंट. याद रखिएगा गाइस, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंट होता है. पोटेंशियल मतलब कि यहां पर V1 कुछ होगा, यहां पर V2 होगा, यहां पर V3 होगा. मैंने वोल्टेज के लिए क्या लिखा है? पोटेंशियल की जगह मैं वोल्टेज लिख देता हूं, ज्यादा आप लोगों को बेटर नाम होगा. वोल्टेज वुड बी डिफरेंट. तो क्या कंडीशन होती है सीरीज में अमीशी? करंट विल बी सेम फॉर ऑल रेसिस्टेंस एंड the voltage will be different. Right guys? Yes, sir. अच्छा, जो यहां पर नीचे बैटरी लगा है, अब एग्जांपल लेते हैं कि बैटरी हमने 6 वोल्ट का लगाया तो सारे रेसिस्टेंस में जो सम ऑफ द वोल्टेज होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द 6 वोल्ट. अगर 6 वोल्ट की बैटरी लगाई, अगर 12 वोल्ट की बैटरी लगाई और मेरे पास 5 रेसिस्टेंस हैं तो सारे रेसिस्टेंस का जो वोल्टेज हम निकालेंगे उसका सम करेंगे तो वो जो बैटरी हमने लगाया है उसके बराबर होगा. राइट? सो रिमेंबर दैट VT, यहाँ पे VT वो टोटल वोल्टेज, VT विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3. प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जिसका भी अनम्यूट है. नीतीश. ओके. सो VT मैंने ये लिखा है यहाँ पे, टोटल वोल्टेज, पूरे सर्किट का वोल्टेज क्या हो जाएगा, VT. एंड दिस VT इज व्हाट? दिस VT इज दिस, द बैटरी विच यू हैव टेकन. सो VT विल बी सम ऑफ ऑल रेसिस्टेंस. अगर मेरे पास 5 हैं तो यहाँ पे V4 V5 हम लिख देंगे. मेरे पास अभी सिर्फ 3 है तो मैंने V1 V2 V3 लिखा है. मैं इसके आगे लिख देता हूं. जस्ट गिव मी अ सेकंड. I will put the dot 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 का मतलब कि अगर आगे और भी रेसिस्टेंस है तो हम लगा सकते हैं. यहां तो कोई दिक्कत है नीतीश? No, sir. अमीशी, सोनल? No, sir. ओके गाइस. सो अब देखिए, अब क्या करेंगे हम. मैंने बोला है कि करंट वुड रिमेन सेम, तो जो करंट VT से निकलेगा वही करंट हमारा R1 से पास होगा, वही करंट हमारा R2 से पास होगा, वही करंट हमारा R3 से पास होगा. राइट? तो मैं यहां लिखूंगा I टोटल टाइम्स R टोटल. वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? IR पढ़ा है ना अभी हम लोगों ने. Yes, V sir. इक्वल्स टू IR. मैंने वहीं से लिखा, VT की जगह पे I टोटल, T फॉर टोटल, RT मतलब टोटल. तो V1 की जगह लिख सकता हूं I1 R1, V2 की जगह लिख सकते हैं हम I2 R2 एंड V3 की जगह लिख सकते हैं I3 R3. किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे अभी बताइए. No, sir. लिख सकते हैं. अब मैंने क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है कि सेम करंट विल फ्लो. दैट मींस आई हैव सेड हियर दैट आई विल राइट डाउन हियर IT will be equals to I1 will be equals to I2, that is all are same. तो मैं इस सबके जगह पे IT की जगह पे I लिख देता हूं सिंपली. I times RT, I times R1, I times R2, I times R3,
प्लस सो ऑन। प्लीज यहां तक पहले नोट कर लीजिए सभी लोग गाइस, जो चीज मैंने लिखी है वो सब कुछ नोट कर लीजिए। मैं ये फॉर्मूला प्रूव कर रहा हूं, और जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो आपको कॉन्सेप्ट में बनाने से पहले दिमाग ये रखना है कि सीरीज वाले सर्किट में करंट वुड बी सेम एंड वोल्टेज विल बी डिफरेंट फॉर ईच रेसिस्टर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. फॉर ईच रेसिस्टर। रेसिस्टेंस को ही रेसिस्टर भी कहते हैं। प्लीज नोट इट डाउन गाइस फर्स्ट। थर्टी सेकेंड्स। जी सर। थोड़ा हाथ जल्दी जल्दी चलाएंगे सभी लोग। Okay guys, done? एक मिनट सर। Okay, Yes, sir. okay fine। अभी प्रूफ नहीं हुआ है, मुझे 2 लाइन और लिखनी है, उसके जगह नीचे स्पेस रखेंगे सभी लोग। Yes, sir. हो गया सर। हो गया? Yes, नेक्स्ट पेज sir. में चलें। ओके नेक्स्ट पेज में। और मैं सभी वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो सभी लोग जाकर वहां पे वीडियो देख सकते हैं एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जिसके पास लिंक नहीं है दे कैन टेल मी, आई विल प्रोवाइड द लिंक्स। अमीशी, आपने देखा है वहां वीडियोस? No, sir. I'll check them यस, today. जाके आप देख लीजिएगा। सारे वीडियोस मैं अपलोड भी कर रहा हूँ, ये आप ही लोग के लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं तो आज पढ़ाऊंगा, फिर मैं दूसरे दिन भी पढ़ा सकता हूँ। बट जो पढ़ाई की अगर कुछ मिस होता है तो आप लोग वीडियोस से भी जाकर देख सकते हैं कि हमने पढ़ाई क्या की है। ओके गाइस? ओके Yes. या सो मूविंग टू नेक्स्ट हियर। सो यहाँ पर हम देखिए, हमने लास्ट लाइन जो लिखा था मैं वापस से यहाँ लिख रहा हूँ। सो आई हैव रिटन IR1, लास्ट लाइन लिख रहा हूँ IR2, IR3 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए कि राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे, सो कैन आई टेक I एज अ कॉमन? So I can take I as a common here. So what is left? R1, R2 plus R3 and so on, right? तो अब Yes, अगर sir. आप देखो, मेरे को लेफ्ट हैंड में भी I मिल गया, राइट में भी, तो कैन आई कैंसल? Because both are same. So we are getting what? R total is equals to R1 plus R2 plus R3 and so on. यही फॉर्मूला मैंने आप लोग को दिया था। Yes, sir. So how to calculate the resistance in series? Just need to add them together. So this is what total RT means, total resistance, and this formula we will utilize for series. For what? For series circuit. For series circuit. Please make a note of guys. मैं जल्दी से पैरेलल भी प्रूफ करूंगा एंड एक क्वेश्चन भी मुझे एटलीस्ट करना है यहाँ पे। अमीशी, इज दिस क्लियर नाउ? कैसे फॉर्मूला प्रूफ आया? Yes, sir. और इसको थोड़ा करिएगा, पढ़िएगा इन सबको, ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करनी है। Yes, sir. और इस संडे आप लोग का गाइस टेस्ट होगा, सो बी केयरफुल। जी सर। साइंस का? हाँ यस, फिजिक्स का टेस्ट मैथ्स का नहीं हुआ था? मैथ्स का भी करेंगे अभी। नेक्स्ट कल तो क्लास मिस हो गई थी, अभी कल क्लास करेंगे ना। हमने फिक्स कर रखा है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे इज योर मैथमेटिक्स क्लास, एंड ट्यूसडे एंड योर थर्सडे इज आवर फिजिक्स क्लास। दैट इज द फिक्स थिंग। ओके हो गया सर। हो गया? अच्छा चलिए, सब लोगों ने नोट कर लिया गाइस? यस सर। Okay, so let's move for parallel one. Okay,
तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं जल्दी से पैरेलल वाला सर्किट यहाँ पुट अप ही कर देता हूँ। गिव मी अ सेकंड गाइस, आई एम जस्ट गोइंग टू पुट अप द पैरेलल सर्किट। ओके, सो अब देखिए मैं एक पैरेलल सर्किट यहाँ डायरेक्टली अपलोड ही कर रहा हूँ। अपलोडिंग। ओके, कैन यू सी गाइस? Yes, sir. अच्छा, मैं इसमें एक अपने तरफ से भी बना देता हूँ, यहाँ पर एक लेके ऐसे बना दिया, और ये हम मान लेते हैं कितना हो गया, R3 हो गया, राइट? दिस इज वी आर डूइंग फॉर पैरेलल रेसिस्टेंस इन पैरेलल। ओके गाइस, ओके। अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि पैरेलल है कि सीरीज है, कैसे पहचानेंगे? अमीशी लास्ट सेशन में बताया था पहचानने के लिए तरीका, Yes, sir. क्या था तरीका बताइए? Sir, करंट divide यहाँ the से, यस, करंट यहाँ से देखिए चला, यहाँ ए पॉइंट पर जैसे पहुंचा तो देखिए करंट के 3 रास्ते आ गए। ए पॉइंट पे पहुंचने के बाद करंट के 3 रास्ते आ गए। तो याद रखेंगे जब भी करंट डिवाइड होता है, करंट के अलग अलग रास्ते मिल जाएंगे, सो दे विल बी इन पैरेलल। अब इसमें R1, R2, R3 सब पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन अगर वही पुराना केस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर करंट जो जा रहा है, क्या इसको मिल रहा है कोई रास्ता डिवीजन होने का? कहीं डिवाइड होने का रास्ता मिला अलग से? नहीं no, मिला। sir. लेकिन अगर यहाँ पर एक मैं ऐसे रास्ता बना देता तो यहाँ पर और यहाँ पर जो रेसिस्टेंस होता वो दोनों पैरेलल हो जाते। ओके, लेकिन अभी हम केसेस आएगा, आई विल डिस्कस विद यू गाइस, डोंट वरी। सो मैं पहले इसको प्रूव कर लूं। तो गाइस इसमें जो हम कंसीडर करते हैं, क्लास आज थोड़ी सी 5 मिनट्स एक्सटेंड मैं करूंगा, इसमें जो हम कंसीडर करते हैं, नोट करिएगा, वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टेंस। इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है, वहां पर रेसिस्टेंस वोल्टेज जो था ईच रेसिस्टर के अलग अलग था, राइट? अब यहां पर जो है वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टेंस विल बी सेम। विल बी व्हाट? विल बी सेम। मतलब कहने का मतलब कि जो वोल्ट यहां पर मिल रहा है, जो बैटरी आपने लगाई, वही वोल्टेज यहां भी रहेगा, वही वोल्टेज यहां भी रहेगा, वही वोल्टेज यहां भी रहेगा। मतलब वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टेंस विल बी सेम। एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. ओके, सेकंड पॉइंट जो है, करंट अक्रॉस द रेसिस्टर, current across the resistor will be different, will be different। ये याद रखेंगे, उल्टा, राइट? तो करंट सभी में इसके लिए I1 हो जाएगा, देखिए यहाँ लिख रखा है I2, यहाँ I1, और यहाँ इसके लिए क्या हो जाएगा, I3, राइट? तो हम यहां से लिख सकते हैं I total is equals to I1 plus I2 plus I3 plus डॉट डॉट डॉट। अगर 4-5 रेसिस्टेंस है तो और भी I4, I5 सब ऐड कर देंगे। कोई प्रॉब्लम यहां तक अमीशी एंड गाइस? No, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता रखा है ऑलरेडी, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो अब I है तो हम लिख सकते हैं V अपॉन आर इज इक्वल्स टू आई, लिख सकते हैं Yes, हम? sir. तो अब देखिए यहाँ IT के जगह पे मैं लिखूंगा VT अपॉन RT। क्या लिखा मैंने? VT अपॉन RT। तो मैं यहाँ लिखूं V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। कैन आई राइट दैट? और ऑलरेडी मैंने sir. पहले ही बता दिया है कि वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर, क्या बता दिया है? वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर विल बी सेम। तो मतलब ये जो VT है वही V1 होगा, V2 सब बराबर हो जाएंगे, राइट? कहने का मेरा मतलब ये है, यहाँ पर आई विल एक्सप्लेन टू यू दैट, गिव मी अ सेकंड, I will explain to you, that means here VT is equals to V1 is equals to V2 is equals to V3. This is the meaning. Do you clear guys? So हम लिख सकते हैं यहाँ, सभी को हमने V मान लिया। क्या मान लिया? V, क्योंकि सब इक्वल हैं।
So V upon RT is equals to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3 plus dot dot dot. Please make a note till here. कोई किसी को डाउट है तो मुझसे भी पूछे, सर वोल्टेज इक्वल क्यों है? क्योंकि ये पैरेलल होता है। पैरेलल में क्या होता है कि करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है, राइट? तो जब Yes, sir. करंट डिवाइड हो जाता है तो जब हम सर्किट पैरेलल बनाते हैं तो मान लिया कि यहाँ पर 12 वोल्ट बैटरी हमने लगाया। कितना बैटरी लगाया? 12 वोल्ट। 12. तो इस रेसिस्टेंस को जो वोल्टेज जा रहा होगा वो भी 12 वोल्ट मिलेगा। इस रेसिस्टेंस को, रेसिस्टेंस R3 को जो जा रहा होगा वो भी 12 वोल्ट मिलेगा। R1 को भी कितना वोल्टेज जाएगा? 12 वोल्ट। तो इससे क्या है कि सबको बराबर वोल्टेज गया, सबको बराबर वोल्टेज गया तो हमारा लाइट अच्छा जलेगा ना। Yes, sir. इसलिए वोल्टेज पे ही डिपेंड करता है करंट। याद रखेंगे ऑलवेज, वोल्टेज पर ही करंट डिपेंड करता है। ओम्स लॉ ये बता रखा है ऑलरेडी। तो ऑलवेज ये देखिएगा, जो शादी ब्याह होता है, शादी वगैरह, तो उसमें क्या होता है, पैरेलल सर्किट करते हैं, या घर में भी पैरेलल सर्किट। अगर सीरीज सर्किट होगा तो पता है क्या होगा? मैं एक एग्जांपल पहले नोट कर लीजिए, मैं एक एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी, नोट कीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ। हम कर लिए? ओके, मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूँ, फिर मैं वो एग्जांपल दूंगा जिससे आप लोगों को क्लियर होगा। अमिशी डन? Yes, sir. ओके, मैं नेक्स्ट पेज में मूव कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ से गाइस, मैं यहाँ से V को कॉमन ले लूं Yes, sir. राइट साइड में। ओके, सो आई विल टेक द कॉमन हियर, सो गिव मी अ सेकंड गाइस। सो V अपॉन RT, सो V कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा हमारे पास? 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। सो इसको कैंसल कर देंगे हम। प्लीज गाइज आप लोग नोट कर लीजिए मेरे साथ। सो इसमें फॉर्मूला मिल गया 1 अपॉन RT इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1, 1 upon R2, 1 upon R3 and so on. Please make a note. This is for what? This is for parallel. Do you clear guys? Yes, sir. हाँ, नोट कर लीजिए फटाफट, फास्ट। डन गाइस? Yes, sir. अच्छा, ठीक है। अभी मैं जो एग्जांपल देना था वो बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक मैं सर्किट जो है सेम चीज मैं पैरेलल के लिए भी बनाऊंगा और सीरीज के लिए भी, या इधर मैं सीरीज के लिए बना रहा हूँ, इधर मैंने पैरेलल के लिए बनाया, ठीक है। अब मैं एक चीज ध्यान दीजिए, रेसिस्टेंस तो सभी कुछ में होता है, बल्ब, फैन, एसी, सब में होता है, राइट। अब देखिए थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सीरीज में ये मेरे पास स्विच बोर्ड हो गया। क्या हो गया? स्विच बोर्ड। यहां से वायर कनेक्ट किया मैंने और सबसे पहले मैंने दिया फैन में। क्या दे दिया मैंने? फैन में। फैन से गया टीवी में, टीवी से गया फ्रिज में, फ्रिज से गया कोई और, अब सेटअप बॉक्स ले लेते हैं, कोई म्यूजिक सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है, और इसको वापस से हम इसमें ऐसे लगा देते हैं तो क्लोज सर्किट बन गया। अब ध्यान दीजिएगा जरा यहाँ पे गाइस, कि अगर आपका पंखा खराब हो गया, देखिए पहले करंट जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, देखिए जा रहा है करंट, राइट। अब बताइए कि पंखा खराब हो गया तो करंट आगे फ्लो करेगा क्या? No, sir. अमीशी? Yes, sir. If your fan will be in trouble, so will the current pass? No, sir. Okay. Second point, अगर मेरा फ्रिज खराब हो गया तो क्या म्यूजिक सिस्टम में करंट जाएगा क्या? No, sir. तो मतलब कुछ भी खराब हो गया तो करंट आगे पास नहीं हो पाएगा, तो ये हमको प्रॉब्लम देना शुरू करेगा। क्या करेगा? हमें प्रॉब्लम देना शुरू करेगा। अच्छा, दूसरा चीज मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। इसका रेसिस्टेंस हम मान लेते हैं कि कुछ सबका 1 ओम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 1 या 2 ले लेते हैं, बेटर होगा। 2 2 2 2। इसका टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो बताएगा मुझे?
8 sir. 8 ओम रेसिस्टेंस, 8 राइट। अब Yes sir. जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट फ्लो उतना ही कम होगा। Yes अब sir. सेम सर्किट में बनाने जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। ये हो गया जी मेरा स्विच बोर्ड। क्या हो गया? स्विच बोर्ड। अब यहां से मैंने वायर निकाला और सबको मैं काम करता हूं, मैं पैरेलली फिट कर देता हूं। म्यूजिक, उसके बाद मेरा आ गया फ्रिज, आ गया जी फ्रिज, उसके बाद आ गया जी टीवी भी आ गया, और उसके बाद आ गया जी फैन आ गया, ठीक है। और सबको इधर से ले भी आता हूं जी मैं, और इधर ये सर्किट बना लिया हमने। देखिए मैं लाइव एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप लोगों को ध्यान दीजिए। करंट इधर से फ्लो हुआ, करंट गया गया। मैंने सब में बोल रखा था वोल्टेज इज सेम, राइट। अच्छा, sir. अब ध्यान दीजिए जरा कि अगर इस केस में, पैरेलल केस में, अगर फैन खराब हो गया, ठीक है जी, खराब हो गया, टीवी फ्रिज म्यूजिक सिस्टम चलता रहेगा ना, क्योंकि करंट तो इधर से पास हो जा रहा है। फैन खराब भी हो गया तो ऐसा है क्या कि फैन खराब, म्यूट कर लीजिए गाइस जो भी हैं। फैन अगर खराब हो गया, एक मिनट कौन है, ओके, फैन खराब हो गया तो क्या ये प्रॉब्लम देगा हमें अमीशी? Yes, sir. फैन खराब हो गया तो क्या टीवी फ्रिज म्यूजिक सिस्टम को करंट जाएगा या नहीं जाएगा? फिर जाएगा। जाएगा। टीवी खराब जाएगा हो सर। गया, टीवी खराब हो गया मान लेते हैं, तो भी फ्रिज म्यूजिक सिस्टम फैन चलता रहेगा जी, राइट। अच्छा, Yes, दूसरी चीज, अब इसका भी मैं रेसिस्टेंस 2 ओम ले लेता हूं सभी का, जैसे उसमें ले रखा था, मैं पार्शियलिटी नहीं करता। इसकी भी 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, तो 4 2 ओम हो गए। तो 1/RT इज इक्वल्स टू 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। सो 1/RT इज इक्वल्स टू, एलसीएम हो जाएगा जी 2, और 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस yes 1 2 2 4, so 4/, 4/2, so this is Half आएगा coming sir. to, so RT कितना हो जाएगा? हाफ। क्यों? अब मैं बता रहा हूँ क्यों, मैं नेक्स्ट पेज में लिखने जा रहा हूँ, गिव मी अ सेकंड गाइस। क्यों? जस्ट अ सेकंड। Inverse हो जाता है sir. Yes, because what we are getting here 1/RT is equals to 2, तो हमें तो RT चाहिए ना, तो RT के लिए क्या करेंगे हम? 1/2 हो जाएगा, दैट मीन्स 0.5 ओम। पैरेलल केस में आएगा कि नहीं आएगा बताइए यहाँ पे गाइस, टेल मी। Yes. आएगा सर, आएगा। 1/RT इज इक्वल्स टू 2। हमको तो RT निकालना है ना, 1/RT से क्या मतलब? ये तो फॉर्मूला बताया है कि कैसे लिखते हैं पैरेलल में, लेकिन चाहिए तो RT चाहिए हमें, राइट। Yes तो sir. इसमें क्या गया? 0.5। अब सिंपल सी बात है, इस वाले केस में 8 ओम है, इस वाले केस में रेसिस्टेंस 0.5 टोटल रेसिस्टेंस, तो किस में करंट ज्यादा फ्लो करेगा? सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल में, पैरेलल में करंट ज्यादा फ्लो पैरेलल करेगा। तो देखा जाए Yes, तो sir. करंट का लॉस किस में कम हो रहा है गाइस? पैरेलल में। पैरेलल में कम लॉस में। होगा, तो Yes, sir. करंट ज्यादा फ्लो हुआ, लॉसेस हमको कम हुआ, तो प्रॉफिट किस में है? पैसा भी तो इसी में कम आएगा, बिजली का बिल। यस सर, पैरेलल में। पैरेलल सर्किट करेंगे तभी तो बिजली का बिल बचेगा हमारे घर में, नहीं तो Yes, हम तो बिजली तो जी कंज्यूम कर रहे हैं और सारा बिजली लॉस करा देते हैं। मतलब घर में भी, मतलब वही है कि सब्जी खरीद के लाए और सबको कचड़े में फेंक दिया, तो ला क्यों रहे हो सब्जी खरीद के? मतलब, इज दैट क्लियर गाइस? Yes यस sir. सर। Amish, is that clear? Yes, sir. So this was the example for series and parallel, और इसमें बहुत सारे questions बाकी हैं, तो मैं वन बाय वन, अभी टाइम ओवर हो रहा है, सो वन बाय वन हम इसका क्वेश्चन देखेंगे। आप लोगों से है कि गाइस जिसके पास जो भी बुक है, प्लीज try to solve the numericals and problems. Okay? यस। Okay. So just give me a second. And दूसरी चीज जो वीडियोस में बना के रखा हूं, जाके देखिए, सारी चीजें क्लियर होंगी। दोबारा तिबारा देखिए, उससे क्या होगा कि जो आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है वहां दोबारा से क्लियर होगा। ये सभी लोग प्रोवाइड नहीं करते कि जो पढ़ा 2 दिन बाद वीडियो मिल जाएगा आपको। हाँ, सर But उसका यहाँ- लिंक मिलेगा सर?
हाँ लिंक मैं शेयर कर रखा हूँ। ओके मैं दोबारा Yes. से शेयर कर दूंगा गाइस। एक काम करेंगे, मैं ग्रुप जनरेट कर दे रहा हूँ, उसमें आप लोग को ऐड कर दूंगा एंड देयर यू विल गेट द लिंक, राइट? Yes. सब चीज उपलब्ध है, क्या? सब चीज उपलब्ध है। यस एवरीथिंग इज हियर। वीडियोस भी हैं, आप वीडियोस देखोगे, क्लास भी जहाँ चल रही है, क्लास भी यहाँ है, मतलब एवरीथिंग इज, वी हैव एवरीथिंग, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके गाइस, और जिसको जो डाउट है वो पूछ सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो हम एक काम करते हैं, अमीशी Yes, sir. एवरीथिंग इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. Everything's ओके ठीक है, लेकिन स्टडी कीजिए, ठीक है? Yeah. ओके रजनीश, रजनीश प्लीज अनम्यूट। यस क्लियर है आपको चीजें? यस सर। ओके फाइन, ओके ठीक है। आदित्य क्लियर है? आदित्य Yes, sir. ओके फाइन, ठीक है, तो सब लोग क्लियर हैं? ओके ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम लोग कल मिलेंगे। हमारी टाइमिंग है 7:45 पे गाइस, ठीक है? okay, sir. या ओके देन बाय, टेक केयर, कल Thank you. मिलते हैं। चल के खाना खाइए, आराम से रहिए, घर में रहिए सेफ, ठीक है? Yes. ओके गाइस, ओके राधे राधे सर जी। ओके, राधे राधे, बाय बाय। Thank you. Stay connected.